Hello aspirants, this is Jaswinder Singh. Welcome to School of General Studies. This is the part 2 of the orientation session with respect to UPSC Civil Services exam. First of all, I would like to express my gratitude for all the love and support that was shown for the first video. It surpassed all of my expectations. I would just like to thank you, all of you, for your love and support. Thanks again. Before continuing the session, I would just like to have a recap what we have done in the previous one. In the previous session, we have discussed the nuances with respect to the UPSC Civil Services exam. We've also discussed the prelims and main syllabus and the question pattern. Then we briefly touched the exam cycle of an aspirant. Then we discussed the aim, objective, mission and the vision of our initiative, School of General Studies. In this video, we're gonna focus upon the preparation strategy that one can use to clear the exam, no matter the number of attempts that you have given. Okay, this strategy will work for the freshers. It will also work for the aspirants who have given couple of attempts, and it will also work for the aspirants who are there in the last attempt. It will also help the aspirants who are working professional. Then we're gonna see the big picture. How does it all fit together? I would just like to point out that the GS mains exams are going on at the time of this recording, so it will be too early to comment on them. Once the GS mains exam is finished, we will be having a detailed discussion with respect to every GS paper in the coming videos. This is just a small recap of the last session. Our initiative is School of General Studies. Our aim is to provide quality education at affordable prices with prime focus on mentorship so as to guide aspirants in the right direction and help them achieve the goal. Our vision is to empower students to acquire knowledge and skills that will support them as a lifelong learner while incorporating core human value. Our mission is to build faith and trust in students and to have a positive mental attitude along the way. Before jumping to the preparation strategy, I would just like to reiterate the quote on which this strategy was inspired from. It was given by the master strategist Sun Tzu in 500 BC. The quote goes like, "If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle." And this quote stood the test of time and is still relevant today. So this brings us to the preparation strategies. It has 5 objectives that one need to go through in order to clear the UPSC Civil Services exam effectively. So the first objective is to know UPSC Civil Services exam inside out. Then you need to know yourself. Then you need to build strong foundations for the preparation. Then you need to apply that foundations or apply that knowledge. And finally, you need to get ready for the exam. So the first objective is to know UPSC Civil Services exam. See, in order to conquer any competition, one needs to know the thought process behind it. Who is conducting the competition? What are its parameters? What are its rules? What are its punishment, etc. So in case of UPSC, you can know the UPSC Civil Services exam by its syllabus, by the prelims and main syllabus, which we have taken a broad look at. Then you have to have the previous year question paper analysis with you, the exam wise, subject wise, paper wise. We have taken a broad look at the question types that are being asked in the exam in the previous video. So the subject wise and the paper wise analysis can be done with the help of any good book which is available in the market. On the basis of the syllabus and the previous year question pattern, you need to gather the resource materials, right? These can be in form of the standard books and complementary books. Standard book is the one which covers the 70 to 80% of your syllabus, and this needs to be read cover to cover, right? The examples for these are your NCERT, Lakshmikant or Indian Polity. Next is your complementary book or complementary material. This can be also known as your value addition material. This value addition material will help you cover the rest 20 to 30% of the syllabus, but it does not require to be read cover to cover rather than to pick up specific topics that are left from the standard books. The examples for these are your newspapers, your current affair magazines. So once you have gathered the resource material, then you need to figure out the priority subjects, topics and subtopics by comparing the syllabus, previous year questions and the resource material.
For example, in Indian polity, the favorite topics or the priority one topics of UPSC are the historical underpinnings or the evolution of the constitution, right? Then it is fundamental rights, DPSP, fundamental duties, preamble, basic structure, panchayati raj, and all. So one should focus on these topics rather than focusing on, you can say, the constitution and non-constitutional body. So this will actually help you to clear out the clutter and focus and study accordingly. Then once you have figured out the priority topics and subtopics, you need to list it down on the piece of paper, and then you need to attach that paper to the particular subject or the book or the particular chapter. This will again help you to clear out the clutter and it will help you to make better notes. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे इसके कीवर्ड्स लिखे हैं वो क्यों जरूरी हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी है हमारी आर.एस. शर्मा विद रिस्पेक्ट टू दी एंशिएंट इंडिया, राइट। और वो जो बुक है हमारी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आती है, इवन विद रिस्पेक्ट टू योर सीबीएसई एग्जाम, उसके बाद आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और बाकी यूपीएससी के एग्जाम्स, स्टेट पीसीएस एग्जाम, आईबी का एग्जाम। एज ये एक पर्टिकुलर बुक ऑलमोस्ट इतने सारे एग्जाम्स को केटर करती है, बट क्या इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं इस बुक से क्या वो सब में सेम होते हैं? नहीं। इसलिए हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये आपको हेल्प करेगा इन सारी चीजों को समझने के लिए, ताकि आपको पता हो कि किस चीजों पे मेरे को फोकस करना है और किस चीजों को छोड़ना है, राइट, बिकॉज वी डोंट वांट आवर एफर्ट्स टू बी गेट वेस्टेड. Then the second objective of the strategy is to know yourself. These are just pointers to know yourself, and they are not in any particular order, and there are many other factors that come into play, but just for this discussion we have taken 7 of them. So the first is you need to know that why you want to compete in UPSC and not in any other civil services exam. The stronger the why, the stronger you're gonna persist and endure the hardship. And next is when your preparation will be complete, right? When you will be done with the basics, when you're gonna be done with the fundamentals, when you're gonna be done with the brainstorming, the test series part. On the basis of this, you need to calculate the time which you require to prepare for the exam. Then you need to figure out your competitive strength. What are your strong points? What are your weak points? For example, if your memory is sharp and you can easily remember the facts, then you need to focus more on your concept building, and vice versa. Then you have to figure out how are you going to compete for the exam. Are you going to do the self-study, or you will be joining any coaching institute, or you will be joining any particular course or a test series. Once you are done with the how, then you need to focus upon where you will be preparing from. Either you will be preparing from your home or migrating to any other state or city for the preparation, and you also need to figure out your exam center as well. Then you need to find your mentor, जो कि यूपीएससी की नब्ज को समझता है और जो आपको भी समझे और एक सही डायरेक्शन में आपको लेके जाए. देखिए, मेंटोर का जो काम होता है वो आपको रास्ता दिखाने का होता है, बट रास्ते पे चलना आपका काम है. 80% एफर्ट्स यू नीड टू पुट इन, और बाकी के 20% एफर्ट्स जो है वो आपका मेंटोर डालता है. Then you need to figure out what this competition is going to cost you in multiple aspects. For example, financial aspect, your mental health aspect, your physical health aspect, your social cost, etc. The objective 3 is to build strong foundations. सी एक एवरेज एस्पिरेंट क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल उससे वो एक बुक उठाएगा लक्ष्मीकांत पॉलिटी. ही विल जस्ट ओपन द चैप्टर 1, स्टार्ट रीडिंग इट एंड स्टार्ट अंडरलाइनिंग द थिंग विदाउट गिविंग इन एनी आउंस ऑफ थॉट कि मेरे को कौन सी चीजें मार्क करनी चाहिए या किसके मेरे को नोट्स बनाने चाहिए या नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं चाहिए. सो इससे क्या होता है कि वो पूरी की पूरी बुक को ही मार्क कर देता है. नहीं तो जब वो नोट्स बनाते हैं तो वो पूरी की पूरी बुक के ही नोट्स बना देते. दे ट्राई टू जस्ट डायरेक्टली रेप्लिकेट, और जो कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए. So what is the effective way to study for any competitive exam? So first of all, as we have discussed, the objective 1 कि आपको उसका syllabus पता होना चाहिए, then the previous year question pattern, then the resource material. उसके बाद you need to figure out the priority subjects, topics and subtopics, and then you need to write those favorite keywords onto a separate piece of paper जो कि वो आपको book पे चिपकाने होते हैं. All these steps will actually help you to cut the clutter and to focus on the important things. So जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक उठाए जो कि 70 to 80% सिलेबस कवर करती है, so you need to read the table of content carefully, and you also need to mark the important chapters and also the keywords which are important for the exam. Once you are done with the table of content,
then you need to have a skim read of that particular subject or of that particular book. Skim read का मतलब क्या होता है कि फटाफट बस आपने अपनी आंखों के सामने से वो पूरी की पूरी बुक निकाल ली, ठीक है, आपने कुछ ज्यादा समझा नहीं, को कुछ समझने की कोशिश नहीं की और अभी आपको करनी भी नहीं है, ये सिर्फ आपका एक वार्म अप है उस सब्जेक्ट के लिए। जब आप वो बुक का स्किम रीड कर लेते हैं और आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट में भी मार्क्ड है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, राइट, और उस चैप्टर में स्पेसिफिक कीवर्ड्स कौन से हैं जो यूपीएससी की पसंद के हैं, उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एनसीएम, राइट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पहले आप उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पहले अच्छे से पढ़िए और साथ में आपके पास एक इंपॉर्टेंट लिस्ट होगी कीवर्ड्स की जो कि यूपीएससी ने बार बार उस चैप्टर में से पूछे हैं, उनको मार्क कीजिए और उसके बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। इसी से ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्सेप्ट की या वो टॉपिक की वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के बाद आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना है, वो भी इंटीग्रेटेड मैनर में। लेकिन नोट्स बनाना हम आपको एक अलग वीडियो में सिखाएंगे, इसमें मैं बस आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि बेसिकली इफेक्टिव नोट्स और इंटीग्रेटेड नोट्स बनते कैसे। आप जानते हैं कि A4 साइज की जो शीट होती है उसके दो साइड्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक। आपके ये जो भी स्टैटिक नोट्स हैं, जो भी आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, उसको आप पेज के फ्रंट पे लिखिए और जो उसका बैक साइड है उसको आप खाली छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। बाद में जब कभी भी कोई भी आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो करंट अफेयर मैगजीन में हो, न्यूज़पेपर में हो या कोई और इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, अब वही जो स्पेसिफिक टॉपिक के जो नोट्स हैं आप उसी के पीछे रखिए, ठीक है, ताकि वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में बन जाए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि टॉपर नोट्स क्यों बनाते हैं, ठीक है। अगर हम एक ये स्केल ले, एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम लें और वाई पे अगर हम वॉल्यूम ऑफ नोट्स लें, तो इनिशियली जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपके पास नोट्स नहीं होते, बट धीरे धीरे नोट्स का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई नई कंटेंट पढ़ते हैं, ये नोट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जब आप फाइनली अपना सिलेबस खत्म करते हैं तो आपके पास एक पहाड़ बन जाता है नोट्स, ठीक है, और फिर बाद में आप घबरा जाते हैं कि इसको कैसा करें। टॉपर्स क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ को दोबारा कंसोलिडेटेड मैनर में लिखना शुरू कर देते हैं, अपनी लैंग्वेज में निमोनिक्स कीवर्ड्स वगैरह यूज़ कर करके बार बार उसको याद करके लिख के वो जो अपना वॉल्यूम है वो दोबारा कम कर ले और इवेंचुअली उनके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं जो वो एग्जाम के लिए लास्ट में यूज़ करते हैं और वही चीज़ उनको हेल्प करती है एग्जाम को क्लियर करने में। तो अल्टीमेटली आपका यही एक वॉल्यूम तैयार होता है नोट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने काफ़ी टॉपर से सुना होगा कि उनके पास GS3 के या GS2 के उनके पास 50-60 पेज या 100 पेज से ज़्यादा नोट्स नहीं है, ठीक है। उसका यही एक कारण कि वो नोट्स पहले तो अच्छे खासे बनाते हैं, एक वॉल्यूम अच्छा लेके जाते हैं, बट बहुत सारे जो लोग हैं वो यहीं पे घबरा जाते हैं और यहीं पे हिम्मत हार जाते हैं। ये नहीं आपको करना, आपको इससे आगे बढ़ना है, उस नोट्स को दोबारा पढ़ना है और दोबारा छोटा करना है। कोई ना कोई आपको उसमें निमोनिक्स या कुछ ना कुछ हुक्स यूज करके उसको छोटा करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, और इवेंचुअली ये आपको अपनी समरी शीट्स बना के पेपर के एंड के लिए आप लेके रखनी है ताकि जो आपको बाद में रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करे। एंड दिस नोट मेकिंग विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिटेन मोर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास सर कंटेंट बहुत है, आई हैव सो मच ऑफ कंटेंट, आई कैन नॉट कीप एवरीथिंग इन माई ब्रेन, नहीं याद आ रहा है, दिक्कत आ रही है। इट्स ओनली बिकॉज कि आप एक इफेक्टिव तरीका नहीं यूज कर रहे हैं उस चीज को दिमाग में डालने का। तो इसीलिए आपको एक इफेक्टिव तरीका अपनाना है ताकि ये जो भी आपके इफेक्टिव नोट्स हैं ये आपके सीधा का सीधा मेमोरी में, और उसका तरीका है पहला रिवाइज का, फिर रिकॉल एंड देन रीराइट। आई विल एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो। यहाँ पे मैं सिर्फ एक आपको ब्रीफ देना चाहूंगा। हम एक फंडामेंटल राइट्स का एग्जांपल लेते हैं। एज वी ऑल नो कि फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। आप एक सेपरेट पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसके ऊपर लिखे फंडामेंटल राइट्स, एक लेफ्ट में छोटा कॉलम बनाइए, वहां के हर एक लाइन में आप आर्टिकल्स के नंबर लिखिए, आर्टिकल 12, 13, 14 टिल 15, और उसके आगे सिर्फ जो उसका कीवर्ड है सिर्फ वो लिख। आर्टिकल 12 आपको ये बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल 13 इनडायरेक्टली टेल्स यू अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। जैसे आर्टिकल 14 के 4 से 5 कीवर्ड्स हैं, एक है रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी टू ऑल, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और एवी डाइसी के 3 प्रिंसिपल। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद हैं तो इसका मतलब है कि आपका आर्टिकल 14 का जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही आप सबके एक एक करके लिख, जहां जहां पे गैप्स आ रहे उसको छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी पूरी लिस्ट अपनी पूरी कीजिए। वंस यू आर डन इट, कंपेयर इट विद रिस्पेक्ट टू योर नोट और देखिए कि मेरे को ये चीज याद क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है। और उस टाइम पे फिर आपको अपने मेमोरी हुक्स बनाने होते हैं, खैर वो हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे, तब जाके ये वाली चीज आपके दिमाग में इम्प्रिंट। एंड वंस दैट इज डन, then you need to test yourself. You need to either test yourself through your daily MCQs और your daily answer writing, या तो कोई भी एक आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन लेवल है वो आप अपना चेक कर सकें। माइंड दैट ये आपका जो लेवल 1 है ये आपको हेल्प करेगा टाइप 1 के जो क्वेश्चंस हैं आपको करेक्ट करने में, प्लस ये आपको टाइप 2 के जो क्वेश्चंस को रॉन्ग ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दैट यू नीड टू क्लियर। देखिए अब आते हैं लेवल 2 ऑफ द प्रिपरेशन, और यू कैन से ऑब्जेक्टिव 4 ऑफ द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी।
देखिए, एक एवरेज एस्पिरेंट क्या सोचता है कि उसने कोई भी एक अच्छा कोचिंग सेंटर लगा ली या कोई भी एक अच्छा कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज कर ली, उससे उसका आधा काम हो गया और बाकी का आधा वो रोज क्लासेस में जाके रोज नोट्स बना के या रोज टेस्ट देगा और पेपर के टाइम पे रिवाइज करेगा और हो जाएगा। दिस कैन बी द केस विद रिस्पेक्ट टू अदर एग्जाम्स बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्योंकि आप खुद ही देखिए ना, जब कोई भी एस्पिरेंट कोचिंग जाता है, 1, 2 या 3 घंटे की उनकी क्लासेस होती है मैक्स, सो बाकी के 12 से 13 घंटे क्या, बाय द वे आई एम एक्सक्लूडिंग दी स्लीपिंग आवर्स। सो टॉपर हर एक बात जानता है कि जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्रिपरेशन। बाकी की जो असली पढ़ाई है वो एक कमरे के अंदर टेबल चेयर पे बैठ के अच्छे से होती है, बुक्स को साथ में दोस्त बना के उसको अच्छे तरीके से समझ के। और ये अच्छे से हम कैसे समझें? जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने चीज पढ़ी है, उसको आप अप्लाई नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू रिकॉल योर शॉर्ट नोट। लास्ट स्लाइड में जो हमने नोट्स बनाए थे उसको हमको दोबारा अच्छे से रिकॉल करना है। जो फैक्ट्स और जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके दिमाग में इम्प्रिंट होने चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अप्लाई दीज नॉलेज इफेक्टिव। और उस एप्लीकेशन के ये 3 स्पेसिफिक लेवल्स हैं। One is your information rearrangement. Then on the basis of this, you need to do the brainstorming. And on the basis of the brainstorming, you will be able to develop the synoptical linkages. For example, अगर हम socio-religious reform movement लें, लाइक स्पेक्ट्रम में से, उसमें जो मूवमेंट से पहले मूवमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उसके बाद उसके फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन अगेन वन नेम, देन फीचर्स, देन नेम एंड फीचर्स। बट क्या लगता है आपको कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बनेगा कि फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट द करेक्ट फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू द यंग बंगाल मूवमेंट? नो। क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द 19th century सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स फोकस्ड अपॉन वुमेन एम्पावरमेंट? ठीक है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, ABCD मूवमेंट्स के नाम होंगे। अब आपको उसमें से सिलेक्ट, बट आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 ऑप्शंस आपके रॉन्ग है, वो आपने डिलीट कर दिए, बाकी 2 में आप फंस जाओगे। यूपीएससी ये चीज जानता है कि आप ऐसे ही प्रिपेयर करते हो, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल, इसलिए वो आपको ऐसे क्वेश्चंस बना के आपको घुमाता है। तो अब आप इसको कैसे कैटर कर सकते हैं? आपने क्या किया कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ के उसको अच्छे तरीके से दिमाग में डाल के आपने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उस पे आपने एक टेबल बनाया, ठीक है, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम। पहले कॉलम में आपने यहाँ पे लिखा मूवमेंट्स के नाम, बाद में आपने लिखे इसके ओरिजिन्स, ठीक है, पर्सनालिटीज इन्वॉल्व, किस चीज पे ये फोकस कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट क्या था। तो जब आप ये करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट्स के नाम लिखेंगे और जब इस टेबल को आप फिल करेंगे, कि धीरे धीरे फिर आप उसको एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये जो 4 मूवमेंट्स हैं इनका ओरिजिन ये कॉमन है, ये कुछ 3 से 4 मूवमेंट्स है जिसमें ये पर्सनालिटी कॉमन है, ये 3 से 4 मूवमेंट्स में या ये 5 से 6 मूवमेंट्स पे इन्होंने वुमेन पे फोकस किया। जब आप ये एनालिसिस कर लेंगे, इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं, जब आप ये एनालिसिस कर लिए, जब आपने वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, आप उसी को एक पीस ऑफ पेपर पे अच्छे से लिस्ट बना के, ठीक है, आप अपने नोट्स में चिपका देंगे। आप इससे और भी ज्यादा डीप जा सकते हैं कि जब ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी, तब इंडिया में ब्रिटिशर्स का क्या इम्पैक्ट था, या फिर कितने हद तक उन्होंने अपना रूल को कंसोलिडेट कर लिया था, या फिर उसमें कितने हद तक हमारे जो इंडियन रूलर्स थे वो अभी भी बगावत पे थे। इससे आपके लिंकेजेस डेवलप होते हैं। अब आपने क्या किया कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स को आपने पॉलिटिकल स्टेटस के साथ भी लिंक कर दिया। सिमिलरली कमिंग टू द पॉलिटी, वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स और द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्टिंग में जब से एक्ट आया है, नॉर्मल एक्ट है, उसके फीचर्स सेम, राइट, सेम चीज आपने जो स्पेक्ट्रम में देखी, सेम चीज आपने लक्ष्मीकांत में भी देखी होगी, और ऐसे ही आप आगे देखेंगे। एक नॉर्मल एस्पिरेंट इसको नॉर्मल पढ़ेगा, रटेगा और छोड़ दे, ठीक है। अगेन क्वेश्चन वैसा बनेगा नहीं, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। एक स्मार्ट एस्पिरेंट क्या करेगा? एक खाली पीस ऑफ पेपर लेगा, ठीक है, अब इस पे ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर देगा, या इसी इन्फॉर्मेशन को रीअरेंज पहले करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे टेबल से मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था, आप इसमें भी टेबल बना सकते हैं, ठीक है, कि आपके जो भी लॉज या एक्ट्स आए थे उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का क्या स्टेटस था, इंडियन रूलर्स कौन कौन से मौजूद थे और क्या कर रहे थे, इंग्लैंड ब्रिटिश में वहां पे क्या इम्पैक्ट था, वहां पे क्या सिनारियो चल रहा था, कौन कौन सी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी उस टाइम पे, कौन कौन सी पर्सनालिटीज अलाइव थी। वंस यू मेक दिस टेबल अगेन एंड यू विल डू द एनालिसिस, सेम आपके कोई ना कोई एक लिस्ट निकलेगी या कुछ ना कुछ एनालिसिस निकलेंगे। आप उस एनालिसिस के दोबारा एक चीट शीट बनाइए, एक पर्ची बनाइए, और वो जो अपने स्पेसिफिक नोट्स हमने लास्ट टाइम बनाए थे, आप उसमें वो चीजें ऐड कर दें। इससे आप खुद देखिए कि आपने पॉलिटी को, आप खुद हिस्ट्री के जो सोशल रिलीजियस इंपैक्ट्स हैं आप उससे जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सिनॉप्टिकल लिंकेजेस बिल्ड कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिनॉप्टिकल लिंकेजेस? सिनॉप्टिकल लिंकेजेस मींस दैट यू आर लिंकिंग वन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट एंड ऑल्सो डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब आप खुद देखिए कि हमने किस तरीके से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स को हमने पॉलिटिकल मूवमेंट्स के साथ भी जोड़ दिया, जो एक्ट्स है हमने उसको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के साथ जोड़ दिया। आई नो इसमें टाइम लगेगा और यही टाइम आपको देना पड़ेगा, या तो आप ये पेपर के पहले दें, या तो फिर आप ये पेपर के दौरान दें, जिसमें से कि फिर स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्जाम लेंदी है, या तो आप ये पेपर के बाद दें, फेल हो, सो सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ये टाइम तो आपको देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम।
आफ्टर बिल्डिंग द सिनॉप्टिकल लिंकेजेस, आपको ये सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करना है और एक चीट शीट बनानी है, और यू कैन से समरी शीट्स बनानी है। एग्जाम से पहले आपको समरी शीट्स कैसे बनाते हैं ये हम आपको दूसरे वीडियो में समझाएंगे। जब आप इस लेवल पे तैयारी करेंगे, धीरे धीरे आप अपने जो मार्क्स हैं वो आप ऐसे बढ़ते हुए देखेंगे एक्सपोनेंशियली। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका थॉट प्रोसेस कब चेंज हो गया। आप हमेशा अब इसी लेवल पे सोचते हैं, ठीक है। और यही वाली चीज़ जब ये आप एग्जाम में भी सोचेंगे, आपको कम टाइम लगेगा और अपना जो एग्जाम है आप वो जल्दी टाइम पे खत्म कर पाएंगे। देखिए एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स के तो काम होगा नहीं। इससे बेटर है कि आप जब टाइम है और जब एनर्जी है तब आप अपने एफर्ट्स डाल लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपका एफर्ट्स का भी ये स्केल ऐसे बनेगा आपका पैराबोला टाइप, ठीक है, कि आपको स्टार्टिंग में एफर्ट्स आपको धीरे धीरे डालने पड़ रहे हैं, बट एक वीक के बाद आपको ये चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी। सो नाउ वी कम टू दी लेवल 3 or objective 5 of the preparation strategy. This is the final objective. इसका टाइम एलोकेशन डिपेंड करता है आपके एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल 30 to 40 days बिफोर प्रीलिम्स इज द बेस्ट टाइम टू गेट एग्जाम रेडी। और ये कैसे होंगे? अगेन जो हमने चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, एनालिसिस किया है, उसी को बार बार अच्छे से छोटे लिख के समझ के हमारे कहाँ पे गैप्स हैं उस चीज़ को फिल करके हम समरी शीट्स बनाएंगे। एज अ सेट की हमने समरी शीट्स मॉडर्न इंडिया की 2 पेजों में बनाई हुई है, PMFIS की 4 से 5 पेज में बनाई, वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। You also have to keep yourself balanced, or you have to have a balanced mindset, right, with respect to your preparation, with respect to your health, ठीक है, your family, your attempt, anything। कुछ ज़्यादा गलत या उल्टा सीधा नहीं सोचना है, आपको अपने पे भरोसा रखना है। You have to maintain your self confidence and then you need to progress in a very balanced way। Then you need to perform the exam rehearsals. This has to be done minimum, you can say 10 to 12 days before the exam। ये आपको बताएंगे हम कैसे करते हैं जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बढ़े। Yes, this completes your preparation strategy. I hope it helps you as it has helped many aspirants, and it will also help you to improve your preparation level, and also it will help you to fill up the gaps in your preparation if you have any. Rest, for any personalized help you can also contact me. My personal contact number is 7678272484. I have the WhatsApp and Telegram on this number. You can message me or call me anytime. Just before ending the session, I would just like to discuss one more thing with you, that is the success principles that you need to incorporate to make this mammoth journey a little bit easy. Yes, over here I will be discussing the 7 basic success principles. The detailed discussion I would like to have in the upcoming videos. See, the success begins with a goal in mind. This goal will lead to a strong determination which will fuel your further efforts, and it will also help you to pass through the darkest tunnel unscathed. Yes, then the second most important principle is to develop trust and have faith in the process. ठीक है, because no one can achieve greatness in their first attempt, provided that it has been backed by years of planning, years of hard work and the strong foundations. मैं यहाँ पे एक आपको ग्रोथ प्रोसेस डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टाइम एंड दिस इज योर स्किल लेवल, राइट। इनिशियली जब आप कोई भी स्किल में होते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, तो एक लर्निंग कर्व आता है। ये लर्निंग कर्व जब आपको ये नई नई चीज़ें पता लगनी बंद हो जाती हैं, फिर आप इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, राइट, थोड़े टाइम के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम से आपका लेवल अप होता है, ठीक है। देन यू अगेन स्टार्ट वर्किंग, आप डे इन डे आउट एफर्ट्स करते हैं, देन अगेन देयर इज अ लेवल अप, देन अगेन यू नीड टू वर्क हार्ड, देन अगेन देयर इज अ लेवल अप, देन अगेन यू नीड टू वर्क, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपका लेवल इंक्रीज होता है। ये ग्राफ मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जब आप छोटे थे, जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया था, ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन से ही बहुत अच्छी साइकिल चलाना शुरू कर गए थे। सबसे पहले तो आपने उसको साइकिल को समझा होगा कि वो साइकिल है क्या चीज़, कैसी चलती है, क्या पार्ट्स हैं क्या नहीं। धीरे धीरे फिर आपने जब आपने वाली चीज़ समझ ली होगी, उसके बाद फिर आपने उस पर बैलेंस बनाना सीखा होगा। ये आपका बैलेंसिंग का फेज़ है। बैलेंस बनाने के बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल हुआ होगा वो लेफ़्ट और राइट टर्न का था, कि आपने टर्न कैसे लेना है। धीरे धीरे पहले आपने लेफ़्ट टर्न पे आपने मास्टरी की होगी, पीछे से जो सपोर्टर्स लगे होते हैं साइकिल में वो निकाले होंगे। उसके बाद आपने राइट टर्न पे सीखा होगा। उसके बाद आप बिना किसी सपोर्टर के आपने साइकिल चलाने की कोशिश की होगी, आपको टाइम लगा होगा। फिर आपने दोस्तों के साथ अपने वहाँ पे रेसिंग करनी शुरू की होगी, ठीक है। उसमें आपने टाइम दिया होगा, एफर्ट्स दिए होंगे। अगर आप इसको आगे लेके गए होंगे तो आप स्कूल लेवल पे आपने साइकिलिंग की होगी, देन योर स्टेट लेवल एंड ऑल, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, ये स्ट्रगल इसको कहते हैं।
ये जो लेवल होता है जब आपको एक नई चीज़ के बारे में पता लगता है और उस पर आप डे इन डे आउट एफर्ट मारते हैं ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, ताकि आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाए, इसको स्ट्रगल कहते हैं। और टॉपर्स ये चीज़ जानते हैं, टॉपर्स कभी भी इस चीज़ को कभी हल्का नहीं लेते, सबसे ज़्यादा वो एफर्ट इसी पे मारते हैं। और इस पूरी जर्नी के दौरान आपको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसमें यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, बट गांधी जी जब जेल में थे किसी ने एक लेटर लिखा था, उस लेटर के अंदर अच्छे वर्ड्स नहीं यूज़ किए गए थे, बट उन्होंने वो लेटर पूरा अच्छे से पढ़ा। लेटर वो डस्टबिन में फेंकने वाले थे, उसके बाद उसी समय उन्होंने एक पिन को रिकग्नाइज, और वो पिन उन्होंने अपने साथ रख ली और वो जो लेटर था वो डस्टबिन में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जो इसमें से काम की चीज़ थी वो मैंने रख ली है और बाकी को मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इसलिए आपको हर एक्शन के पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों देखने, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस दीस नेगेटिव्स आर अफेक्टिंग योर गोल, आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, एंड यू नीड टू यूज दिस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। और ये सारी चीजों का जो मोमेंटम है ये आपका बनाएगा योर फोर्थ प्रिंसिपल, विच इज योर सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है कि जो डिसिप्लिन जो सेल्फ से इंकलकेट हुआ है, ये सेल्फ डिसिप्लिन ही है कि ये पूरे के पूरे इस जर्नी के जो मोमेंटम को ये बना के रखता है। और इसी के दौरान आपको क्रिटिकल होना है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है। क्रिटिकल इन द सेंस कि जो भी चीज़ आपको गोल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, आपको उसके बारे में सोचना है। आपको पेसिमिस्ट नहीं होना है, बट यू नीड टू थिंक क्रिटिकली दैट हाउ एनी एक्शन इज गोइंग टू अफेक्ट माई गोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। यू नीड टू लुक अपॉन और यू नीड टू थिंक क्रिटिकली अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स, your sleeping habits, your thought process, and you need to continue doing these things which positively affects your goal, and you need to stop doing those things which negatively affects your goal. Sixth principle आता है आपका creative imagination और problem solving. See, life is full of problems. See, until you have given a proper thought towards any or all actions you perform, then you cannot blame anyone else for the consequences except yourself. इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरी ग्रोथ के दौरान आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, और आप ही को उनका कोई ना कोई एक क्रिएटिव तरीके से सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। द मोर क्रिएटिव वेज यू फाइंड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, द मोर यू गोना गेट आउट ऑफ लाइफ। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ द टॉपर्स, यूपीएससी टॉपर्स, उनके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम आई होंगी, बट उन्होंने उसका कोई ना कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढ के वो लाइफ में आगे बढ़े। इवन यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, टाटा एंटरप्राइज। देन यू नीड टू लर्न फ्रॉम द एडवर्सिटी एंड फ्रॉम द डिफीट, ठीक है। कोई बात नहीं अगर आपका एक अटेम्प्ट रह गया या एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, दूसरे में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, पहली बारी में किसी का भी एक साथ नहीं होता, until and unless they have a strong foundations. So what you need to do is you need to learn from your mistakes, and finally you need to develop the ability to work together. See, कुछ चीज़ों में आप अच्छे होंगे, कुछ चीज़ों में आपके फ्रेंड अच्छे होंगे, कुछ चीज़ों में कोई और अच्छा हो। So you need to develop the ability to work together so that you can solve this UPSC puzzle in an efficient manner, so that you can achieve the victory together, as it is very lonely at the top of the mountain. So with this, I would just like to end this presentation over here. So we are working day and night to bring you more such videos. One section will be with respect to how to read effectively or how to make effective notes. The other set of video will be with respect to the orientation session with respect to every subject. There will be some booster sessions as well, which will help you to increase your marks. Then there will be some more detailed discussion with respect to the success principles, if you like. Yes, I would just like to end this session here with a beautiful quote from one of the best animation movies out there. It goes like, "There is no secret ingredient. To make something special, you just have to believe it's special." Mr. Pink, Kung Fu Panda. Yeah, so I hope that this presentation or session would have been of some help to you. Thanks for your time and see you in the next one. All the best.